جی سر. جی ڈاکومنٹ شیئر ہو رہا ہے؟ یس سر. جی سر. یس سر. سر ڈاکومنٹ اب غائب ہو گیا. دوبارہ شیئر کرتے ہیں. دوبارہ شیئر. جی دیکھیے گا. ہو گیا سر شیئر. رائٹ. اب اس کا ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کا اسٹرکچر یہ لوگ کیا بنا رہے ہیں. آپ کے پاس کیا جی بس آ جائے گا. شیئر ہو جائے تو بتائیے گا. ہو گیا سر شیئر. جی کارپوریٹ اسٹرکچر. آپ کے پاس ایک جو ہے ایگزان موبل، پیٹروناس اور شیوران. ایک تو سچویشن یہ ہے کہ یہ تینوں مل کے جو ہے وہ آپ کے پاس اپ اسٹریم فائنانسنگ کر رہے ہیں 100%. اپ اسٹریم کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں فیلڈ سسٹم کی. دوسرا آپ کے پاس سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس 89% جو ہے وہ فائنانسنگ ٹی او ٹی سی او کی فائنانسنگ اور 11% فائنانسنگ یہاں پہ آ جائے دوسری چوائس. دوبارہ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ 100% اپ اسٹریم میں انویسٹمنٹ، 89% انویسٹمنٹ چارڈ پائپ لائن کمپنی میں اور 11% انویسٹمنٹ کیمرون کمپنی میں. یعنی پریکٹیکلی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 100% فائنانسنگ کون کرے؟ پرائیویٹ اسپانسرز کریں. اس لیے لفظ کیا یوز کیا؟ یہ زیرو، یہ ڈیٹ زیرو، اکویٹی 15:21. تو یہ ایک سچویشن ہو سکتی ہے. دوسری سچویشن میں 89% جو ہے وہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ٹی او سی میں اور 11% انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی کیمرون کمپنی میں. گورنمنٹ آف چارڈ 11% پرووائڈ کرے اور گورنمنٹ آف چارڈ 5% انویسٹمنٹ اس کمپنی میں کرے. اور فائنلی گورنمنٹ آف کیمرون 10% اسٹیک اس کمپنی کے اندر لے کے آئے. یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ جو ہے وہ جو پروپوز انویسٹمنٹ اسٹرکچر ہے اس کی سچویشن یہ ہے. اپ اسٹریم 100% فائنانسنگ کون کرے گا؟ پرائیویٹ اسپانسرز کریں گے. تو یہ تو کیس ہو گیا علیحدہ. اب آپ کے پاس دوسرا کیس آ گیا. دوسرا کیس ہے کہ چارڈ کی جو کمپنی ہے اس کی فائنانسنگ کیسے ہو. تو چارڈ والی کمپنی کے اندر 89% جو ہے وہ پرائیویٹ اسپانسر انویسٹ کریں اور 11% جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے چارڈ کی گورنمنٹ. تو اس طرح جو ہے وہ چارڈ کی کمپنی کا کیپٹل اسٹرکچر بن جائے گا. تیسرا کیس آپ کے پاس آتا ہے کیمرون کی کمپنی. اب کیمرون کی کمپنی کے حوالے سے کیا سچویشن کہ کیمرون کی کمپنی میں 85% انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسپانسرز کریں، 5% چارڈ کی کمپنی اس میں انویسٹ کرے اور 10% گورنمنٹ آف کیمرون کرے. تو یہ تیسرا اسٹرکچر آپ کے پاس بنتا ہے. اپ اسٹریم فیلڈ کے اندر 100% اسپانسرشپ بائی ایگزان، پیٹروناس اور شیول، یہ تین کمپنی کریں. کلوز ہو گیا. اب دو کمپنیز اور فارم ہوئی ہیں، ایک چارڈ پائپ لائن کمپنی اور ایک کیمرون پائپ لائن کمپنی. چارڈ پائپ لائن کمپنی میں 89% فائنانسنگ بائی اسپانسر اور 11% فائنانسنگ بائی
चार्ड गवर्नमेंट। अब इस कंपनी के हवाले से नीचे ब्रेकअप देखें तो 199 जो है मिलियन डेट की सूरत में, 123 इक्विटी की सूरत में। टोटल फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर चार्ड पाइपलाइन कंपनी इज 322 मिलियन। इसमें डेट का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 199 ओवर 322 तो 62% फाइनेंसिंग डेट फाइनेंसिंग होगी। तीसरा जो है केस, उसमें टोटल फंडिंग कितनी चाहिए, 1881 मिलियन चाहिए। इसमें से डेट का कंपोनेंट 1201 और इक्विटी का कंपोनेंट 680। तो ये आपके पास 64% फाइनेंसिंग ऑफ अपस्ट्रीम कंपनी, फाइनेंसिंग ऑफ चार्ड कंपनी एंड फाइनेंसिंग ऑफ कैमरॉन पाइपलाइन कंपनी। अपस्ट्रीम कंपनी में डेट 0 और चार्ड कंपनी में 199 मिलियन, और जो आपके पास कैमरॉन कंपनी है उसमें 1201 मिलियन। इक्विटी का कंपोनेंट पहले केस में 121, 123 इक्विटी इन केस ऑफ चार्ड पाइपलाइन कंपनी एंड 680 इज द फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड फॉर कैमरॉन लिमिटेड कंपनी। ये डाटा ऑनवर्ड यूज होगा। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ द कैश फ्लो, फील्ड सिस्टम के लिए कितने पैसे चाहिए, ये ऊपर हमने 1521 की बात की, यही 1521 यानी 40% जो है वो चार्ड के अंदर इन्वेस्ट होगा। एक्सपोर्ट, ये दो हिस्से थे, इन दो हिस्सों में से चार्ड के अंदर कितनी अमाउंट इन्वेस्ट होगी 229, और कैमरॉन में कितनी इन्वेस्ट होगी 1338, टोटल अमाउंट 1561। ये आपके पास हो गया 42.1% फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट सिस्टम के लिए। इंटरेस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट के ऊपर अमाउंट स्पेंड होगी 458 मिलियन। डेट सर्विस रिजर्व फंड के लिए 177 मिलियन रखे जाएंगे, और टोटल फाइनेंसिंग जो रिक्वायर होगी वो 3723 मिलियन होगी। अब आते हैं दूसरी तरफ, यूजेस ऑफ द फंड। कैपिटल मार्केट से बॉन्ड 400 मिलियन के, जी आप बताइए। सर ये मैं पूछना चाह रही थी, अभी हमने जो यूजेस ऑफ कैश पढ़ा है, ये अपस्ट्रीम कंसोर्शियम के यूजेस बताए हुए हैं इसमें। जी इसमें देखिए ये 1521 की फिगर है, ठीक है आपके पास, ठीक है। ठीक है। तो ये उस पोर्शन में। दूसरा एक्सपोर्ट सिस्टम के अंदर जो अमाउंट गई है, ये आगे वर्किंग में आ जाएंगी सारी। डेट किस तरह अरेंज होगा, 400 मिलियन कैपिटल मार्केट के बॉन्ड इशू किए जाएंगे। आईएफसी 100 मिलियन का खुद लोन देगा, 300 मिलियन कंसोर्शियम डिफरेंट जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर प्रोवाइड करेगा। टोटल अमाउंट 400 मिलियन हो जाएगी। इक्विटी के अंदर आपके पास टोटल इक्विटी कितनी चाहिए, अब देखें टोटल इक्विटी के लिए हमारे पास जो है तमाम इसमें तीनों पोर्शन को ऐड कर देंगे हम इक्विटी के, तो वो कैलकुलेट हो जाएगा कि टोटल इक्विटी ये ऐड कीजिएगा 1521, 123 और 680, टोटल तरह कोई ऐड कर दें। चलिए बाद में इसको देख लेते हैं। इक्विटी के अंदर एक्सॉन का हिस्सा 880, पेट्रोनास का हिस्सा 772, शेवरन का 521, टोटल 2206, ये इक्विटी से प्रोवाइड होगा। चार्ड की गवर्नमेंट दो जगह से फंडिंग लेगी, 33 मिलियन आईबीआरडी से, और एक्सपोर्ट जो है एजेंसी से 47 मिलियन वो प्रोवाइड करेगी। कैमरॉन की गवर्नमेंट 44 और 27 बारो करेगी, 70 मिलियन ये प्रोवाइड करेंगे, और आपके पास 3723 इज द टोटल साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। देखते हैं इसको आगे जाके जब इसकी डिटेल में आएंगे। बुनियादी तौर पे दो चीजें हैं कि इस अमाउंट का 1521 मिलियन फील्ड सिस्टम पे स्पेंड होगा, और जो बाकी सारी अमाउंट है वो किसके ऊपर स्पेंड होगी, 1567 स्पेंड होगा एक्सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। इंटरेस्ट वगैरह के लिए 457 यूज होगा, और 177 रिजर्व फंड में रखा जाएगा ताकि आने वाली वेरिएशंस को देखा जा सके। इसके बाद नेक्स्ट के अंदर आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है हिस्टोरिकल, इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि प्राइवेट इक्विटी, चार्ड इक्विटी, कैमरॉन इक्विटी किस किस साल के दौरान क्या रेट ऑफ रिटर्न रहे, ये जब वर्किंग करेंगे तो उस शीट को देख लेंगे। इस तरह आपके पास ये कैलकुलेशंस है प्रोजेक्शंस की कि आपके पास पार्टिसिपेंट्स का रेवेन्यू प्रोजेक्शन क्या है। तो कैश
अवेलेबल, ये कैश फ्लो की एस्टिमेशन करके उसने दी है कि 2004 में कैश फ्लो, 2005 में 6, ये कैश फ्लो टू डिस्ट्रीब्यूटर्स कितना होगा, रॉयल्टी की अमाउंट कितनी होगी, अपस्ट्रीम टैक्स कितना होगा, पाइपलाइन टैक्स कितना होगा, शेयर ऑफ आरओई, टोटल कैश फ्लोज कितने आएंगे। जब हम इस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करेंगे तो इन्हीं कैश फ्लोज को यूज करके हम वर्किंग करने की तरफ जाएंगे। प्रोजेक्टेड रिटर्न्स पे आते हैं। 3 उसने अजम्पशंस ली कि अगर रिजर्व 595 मिलियन बैरल हुए, अगर रिजर्व 917 मिलियन हुए, अगर रिजर्व 1038 मिलियन बैरल हुए, तो ये सिनेरियो एनालिसिस के लिए 3 चीजें। प्राइस अगर 12 हुई, अगर प्राइस 15.25 हुई, अगर प्राइस 18.5 हुई, सिनेरियो एनालिसिस है। तो उस सूरत में नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट उसने करके दी। उसने बात की कि 108 मिलियन एनपीवी है, अगर ये रेट है चार्ट के लिए, कैमरॉन के लिए 92 है, और प्राइवेट स्पॉन्सर्स के लिए ये नेगेटिव है। इस तरह कहना चाहिए कि 12 अगर प्राइस होती है तो उस सूरत के अंदर ये प्रोजेक्ट उनके लिए वायबल नहीं होगा। चार्ट के लिए हायर इसलिए है कि चार्ट ने तो कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं है, उसने तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना इनकाइंड इन्वेस्टमेंट है, कैश की सूरत में तो कोई चीज उसमें मौजूद नहीं है, पैसे सारे के सारे आउटसाइडर्स ने प्लेस करने हैं। अगर प्रोडक्शन 917 है तो ये सूरत हाल होगी। प्रोडक्शन अगर 10238 पे वर्किंग करें तो आपके पास डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर इंफॉर्मेशन आएगी। तो एनपीवी की भी इंफॉर्मेशन गिवन है और आईआरआर भी। अगर प्राइस 12 है तो चार्ट के लिए आईआरआर 42%, अगर इससे भी ऊपर जाती है तो उसका आईआरआर इंक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पे देखें कि अगर जो है सिर्फ 600 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस होता है तो शायद ये उस सूरत में वायबल होगा जाके स्पॉन्सर्स के लिए, अदरवाइज ये वायबल ही नहीं है। अगर जो है प्रोडक्शन 900 को एक्सीड करती है तो फिर ये तमाम सिचुएशंस के अंदर वायबल है। और अगर ये क्वांटिटी आपके पास होती है 1038 तो सूरत के अंदर भी ये वायबल है। किसी भी सूरत में मैक्सिमम आईआरआर इस प्रोजेक्ट का 27% को एक्सीड नहीं करेगा। और अगर प्राइस जो है और जो आपके पास क्वांटिटी है दोनों फिगर लोअर साइड पे रही तो इसका मतलब है कि इसका एनपीवी भी नेगेटिव रहेगा और आईआरआर भी। ये 2 सिचुएशंस हैं जिनमें प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ 600 मिलियन, प्राइस इज 12 और अप टू 15.25। यस, अगर प्राइस 18.5 के ऊपर जाती है तो ये प्रोजेक्ट वायबल होगा लोअर आउटपुट के साथ। ये जनाब आपके पास क्रूड की हिस्टोरिकल प्राइसेस की इंफॉर्मेशन गिवन है, वो जो उसने एवरेज बताई थी कि मैक्सिमम प्राइस 42 तक गई है 1990 के अंदर। ये 1990 में 42 तक क्यों गई थी? ये 1990 में क्या खास बात हुई थी? में आइडिया? 1990 के अंदर इराक वार थी जिसकी वजह से जो है ये प्राइसेस जो है उनके अंदर एबनॉर्मल राइज आया था। तो ये उसने बात की। इसी तरह प्राइस मिनिमम जो है वो 9 बैरल तक रही और मैक्सिमम 42 तक। तो इस पीरियड का उसने एक एवरेज कैलकुलेट कर दिया कि मैक्सिमम 14.92 तक, मिनिमम 8.75 तक, 18 साल की एवरेज 20.43 और करंट प्राइस जो है वो इस वक्त 29.44 है। हमें केई वगैरह भी कैलकुलेट करना होगा। तो यूएस ट्रेजरी बिल के रेट, ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के रेट, लाइट स्वीट क्रूड फ्यूचर की प्राइसेस, प्रोजेक्टेड प्राइसेस फॉर वर्ल्ड ऑयल। ये आपके पास जो है प्राइसेस वेरिएशन को कैप्चर करने के हवाले से ये शीट चार्ट का कंट्री डाटा कि इस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, इसका रेवेन्यूज कितने हैं, टैक्सेस कितने हैं, बजट क्या है, इंडेक्स क्या है, ये सारे का सारा डाटा जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक डाटा है इसके हवाले से। इसी तरह ये आपके पास अफ्रीकन डेवलपमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डाटा, इसके अंदर जो है वो सिर्फ चार्ट का डाटा नहीं बल्कि अफ्रीका के इस पूरे रीजन का जो डाटा है वो आपके पास मौजूद है कि ये सिर्फ चार्ट का प्रॉब्लम है या अफ्रीका के अंदर ऑन एवरेज यही सूरत हाल चल रही है। तो चार्ट, कैमरून, अल्जीरिया, अंगोला, बेनिन, बोट्सवाना, ये सारा का सारा अफ्रीकन इंफॉर्मेशन। तो ये तो जब यूज होने के फेज के ऊपर आएगी। तो ये तो थी बात इस क्वेश्चन के हवाले से। अब
क्वेश्चंस के ऊपर बात शुरू करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या अराइज होते हैं। क्वेश्चन जो पॉसिबल अराइज होते हैं वो एक ये है कि प्रोजेक्ट फाइनेंस इन लोगों ने क्यों यूज किया एक्सपोर्ट सिस्टम के लिए, और कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों यूज किया एक्सप्लोरेशन के लिए। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, व्हाट आर द रीजंस ऑफ यूजिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस फॉर फील्ड सिस्टम एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर यूजिंग प्रोजेक्ट फाइनेंस इन एक्सपोर्ट सिस्टम। जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं एक ये बनता है। दूसरी बात बनती है इसके अंदर कि आपके पास इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड रिस्क और रिटर्न कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये बनता है कि वर्ल्ड बैंक का इसमें रोल क्या है। चौथा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि ये जो रेवेन्यू मैनेजमेंट प्लान इन्होंने जो है प्रपोज किया है, इसको आप इवेल्युएट करें कि इसकी क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस हैं। विल इट वर्क, एक ये क्वेश्चन बनता है। इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ल्ड बैंक में जो डिबेट चल रही है, क्या हम उसकी समरी बता सकते हैं कि इसकी सपोर्ट में क्या आर्गूमेंट्स हैं और इसके अगेंस्ट क्या आर्गूमेंट्स हैं, और वर्ल्ड बैंक को क्या करना चाहिए। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये प्रोजेक्ट अगर ये कंपनी टेकअप कर रही है तो इन कंपनीज का कुछ ना कुछ तो इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी वगैरह क्या होगी। प्रोजेक्ट को अगर इन्होंने इवेल्युएट किया तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये चीजें क्या है, यानी केई क्या है, केडी क्या है, वैक क्या है, ये चीज। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम खुद वैक कैलकुलेट करें और उसके कैश फ्लो को इवेल्युएट करें तो ये जो बात हो रही थी कि जनाब ये प्रोजेक्ट जो है इसकी एनपीवी जो आपने आइडेंटिफाई की, ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये एक फेयर वैल्यू है इस प्रोजेक्ट की। ये एनपीवी की कैलकुलेशन जो है क्या डाटा वाकई इसको सपोर्ट करता है या नहीं, या इसमें कुछ ऐसी अजम्पशंस हैं कि जिसकी वजह से ये फिगर या तो हायर एंड के ऊपर है या लोअर एंड के ऊपर मौजूद है। तो एक इसकी जो है वो वैल्यूएशन की बात इस प्रोजेक्ट की यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम वन बाय वन आंसर करने की तरफ जाएंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन जो है उसका मैं आंसर जो है उसके ऊपर बात शुरू करते हैं कि ये बताइए कि इसका अगर आंसर आप लोग पहले करें फिर इसके बाद मैं इसकी डिस्कशन के अंदर जाता हूं। को क्यों प्रेफर किया, कॉर्पोरेट फाइनेंस को क्यों प्रेफर किया इन लोगों ने फील्ड सिस्टम के लिए। सर रेवेन्यूज मैक्सिमाइज रखने के लिए कि अगर डेट प्रोजेक्ट फाइनेंस की तरफ जाता तो डेफिनेटली जो भी एक्सप्लोरेशन वगैरह की वजह से निकलता ऑयल उसके लिए ज्यादा उनको पे करना पड़ता है रेवेन्यू। तो अगर वो इसको कॉर्पोरेट फाइनेंस पे रखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट तक रख सकते हैं मे बी। राइट, और इसके अलावा कोई और रीजन। ये शीट शेयर हो रही है चैड कैमरून पाइपलाइन डेवलपमेंट। नो सर, नो विजिबल नहीं हो रही सर। मैं दोबारा शुरू करता हूं, जी बताएं, जी कीजिएगा क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन गिवन है इसमें फाइल में? ये नहीं, क्वेश्चन फाइल में गिवन नहीं है। ये तो जो हमने डिस्कशन पढ़ी सारी की सारी, उसमें एक तो इशू आ रहा था कि चार्ट को फाइनेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर चार्ट के अंदर मौजूद रिस्क की बात हो रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद बात हो रही थी, हमारे पास इस डिबेट के अंदर ये मौजूद था कि एक जगह उसने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग यूज की और एक जगह पे उसने कॉर्पोरेट फाइनेंस यूज किया, ठीक है। फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन था कि वर्ल्ड बैंक का रोल जो है वो क्या था, कि वो हमने तो ये सारी की सारी चीजें कंबाइन, मैंने लास्ट क्लास में कुछ 3 या 4 क्वेश्चन शेयर किए थे, मैं लिख देता हूँ सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चन। और फिर इसके बाद एक चीज के अंदर आ गई कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये प्रोजेक्ट वायबल है इस डाटा के मुताबिक, ये प्रोजेक्ट के मुताबिक वायबल नहीं है। तो डिस्काउंट रेट ये लोग क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये तो बता दिया है कि इक्विटी कितनी है, डेट कितना है, उन्होंने ये भी बता दिया है कि वर्ल्ड बैंक वगैरह के रेट्स क्या है। हम उन कंपनीज के हवाले से मैक्रो इकोनॉमिक डाटा भी उसमें गिवन किया हुआ है, तो हम इसकी ये कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग वगैरह इसकी खुद कर सकते हैं।
तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है लाजमी बात है कि उसी के ही बैकग्राउंड के अंदर हम लेके चलते हैं। चलिए जरा इसको पहले ये शेयर हुई जी, अब ये जी सर हो गई। राइट। Exxon Mobil, Chevron and Petronas undertake a 4 billion petroleum development and pipeline project in Chad, which presented a unique opportunity to stimulate Chad's economic development but entailed environment and social risk. Broader background: कॉर्पोरेट फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड सिस्टम यूज किया गया और प्रोजेक्ट फाइनेंस को यूज किया गया हमारे पास पाइपलाइन के लिए। हमारे पास चॉइसेस क्या क्या थी उनको भी देख लेते हैं। डेट डिबेट ऑन अनस्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ चार्ट शेयर ऑफ रेवेन्यूज। दूसरा अहम इशू ये है कि एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर जो है वो एक स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ना हो, क्या उसकी फाइनेंसिंग होनी चाहिए या नहीं, और अगर फाइनेंसिंग होनी चाहिए तो फिर इसके अंदर उन कंट्रीज को उन फंड्स का जो है वो उस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, उसके लिए उन्हें कैसे कंपेल किया जाए। एक जो है इसके अंदर हमारे पास वर्ल्ड बैंक्स इंट्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू मैनेजमेंट प्लान टू टारगेट चार्ज गवर्नमेंट रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट पर्पज एंड डिबेट ऑन द लाइकलीहुड ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ दिस प्लान, कि ये प्लान वर्क करेगा या वर्क नहीं करेगा। ये बुनियादी चार चीजें जो है जिनको हम देखने जा रहे हैं, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कि आपके पास हमने प्रोजेक्ट फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस में एक डिबेट की थी। इसके अंदर हमने एक दफा लिस्ट किया कि डिफरेंट कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस यूज किया फील्ड सेक्शन के लिए और प्रोजेक्ट फाइनेंस यूज किया गया एक्सपोर्ट सेक्शन के लिए। अब इस फील्ड सेक्शन में एसेट किस तरह के होंगे? ऑयल फील्ड्स होंगे। एक्सपोर्ट सिस्टम के अंदर जो है आपके पास एसेट्स कैसे होंगे? पाइपलाइंस होंगी, लोडिंग फैसिलिटी होगी, वो एक जो है ऑफशोर जो है आपके पास वेसल होगा जहां पे सारा का सारा आप इकट्ठा करेंगे। एक चीज, दोनों जगह के ऊपर आप कौन सी फॉर्म ऑफ द कंपनी यूज कर रहे हैं? आपने एक अपस्ट्रीम कंपनी जेवी के तौर पे बनाई। दूसरी जगह के ऊपर आपने एक्सपोर्ट में क्या किया कि एक कंपनी एक्सॉन ने बनाई जो सब्सिडरी थी, फिर इसके साथ वहां पे एक जो है वो चार्ड की कंपनी थी और एक कैमरॉन की जो है वो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी। तो वहां पे आपके पास तीन कंपनी, एक अनइनकॉर्पोरेटेड और दो लोकल गवर्नमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन। लीवरेज फील्ड सिस्टम के अंदर जीरो, वो जो हम टेबल देख रहे थे उसमें 1521 और डेट जीरो था, यही चीज लिखी हुई थी, वही चीज सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट की है कि इसमें आप लीवरेज यूज नहीं करना चाहते। इस जगह पे हमने बात की थी कि 62 और 64, एक कंपनी में 62% डेट फाइनेंसिंग थी, एक में 64% डेट फाइनेंसिंग थी। यहाँ पे आपके पास कॉर्पोरेट फाइनेंस है तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में तो रिकोर्स नहीं होता, तो ये नो रिकोर्स की सिचुएशन है। यहाँ पे आपने इन कंपनीज के हवाले से लिमिटेड रिकोर्स, हमने उसको मार्क भी किया था कि लिमिटेड रिकोर्स प्रोवाइड किया। कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर तीन स्पॉन्सर होंगे। कौन से तीन स्पॉन्सर होंगे? एक शेवरन, एक पेट्रोनास और एक एक्सन मोबिल। जबकि ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने कहा कि तीन तो ये स्पॉन्सर होंगे, इसके अलावा दो गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, एक चार्ड की गवर्नमेंट और एक कैमरून की। देखिए मैंने इसको सिर्फ डाटा को समराइज किया है। एक्सॉन का शेयर कितना होगा? 40%। शेवरन का कितना होगा? शायद 35%। और 25% किसका था? पेट्रोनास का। तो मेजर जो लीड स्पॉन्सर था वो एक्सॉन ही था। इस सेक्शन में कितनी अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा उसको अगर उसको आप ओपन कर लें साथ पैरेलल तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि 1521 वाज द इक्विटी। तो इसके अंदर एक्सन का हिस्सा कितना होगा? 1521 का 40% होगा। जो आपकी ट्रांसपोर्ट का सेक्शन है इसमें आपने 123 चार्ड की कंपनी के अंदर इक्विटी है और 680 कंपोनेंट है इक्विटी का कैमरॉन की कंपनी में। तो क्योंकि एक्सान का शेयर 40% है तो एक्सान ने कितनी अमाउंट प्रोवाइड करनी है? 40% ऑफ द इक्विटी ऑफ
Chart Oil Transportation Company and 40% of the equity of Cameron Oil Transportation Company. इसलिए ये टोटल फंड्स इक्विटी के कैमरॉन के हवाले से सामने आ गए। क्लियर जी? यहां तक इस जगह तक कोई बात पूछने वाली? जब आप कारपोरेट फाइनेंस यूज कर रहे हैं फिर तो आपकी कंपनी डायरेक्टली वर्क कर रही है, तो वही सिंपल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का कि एक सब्सिडरी बनाई और उसके जरिए आपने प्रोजेक्ट टेकअप कर दिया। जब आप प्रोजेक्ट फाइनेंस यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे आपने कंट्रेक्चुअल अरेंजमेंट करने हैं, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपके पास कॉम्प्लेक्स होगा। डिस्क्रिशन ओवर कैश फ्लोज, क्योंकि कारपोरेट फाइनेंस है, मैनेजर की मर्जी है कि जनरेट होने वाले कैश फ्लोज को जैसे चाहें यूज करें। जबकि प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर हमने बात की थी कि सबसे पहले डेट प्रोवाइडर को पे होगा, इसके अलावा जो आपकी मैंडेटरी कास्ट है वो पे होंगी, फिर अगर कोई चीज बचेगी रॉयल्टीज पे होंगी, टैक्सेस पे होंगे, ऑपरेटिंग कास्ट पे होगी, तो डिस्क्रिशन लिमिटेड हो जाएगी। मॉनिटरिंग, क्योंकि ये कारपोरेट फाइनेंस है, कंपनी का पार्ट है, तो कंपनी ही इसकी मॉनिटरिंग करेगी। जबकि प्रोजेक्ट फाइनेंस में क्या होगा, डेट प्रोवाइडर भी मॉनिटरिंग करेगा, वर्ल्ड बैंक भी मॉनिटरिंग करेगा, एक वो जो है आपके पास चार्ट की गवर्नमेंट भी मॉनिटरिंग करेगी, कैमरॉन की गवर्नमेंट भी मॉनिटरिंग करेगी, आपके पास जिसने एक्सपोर्ट जो है वो आपको जो है एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की है वो भी उसकी जो है उसकी मॉनिटरिंग करेगा, और कमर्शियल बैंक जिन्होंने फंडिंग की है वो भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, बॉन्ड प्रोवाइडर भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट फाइनेंस में एक्सटर्नल बहुत सारी एक्सटर्नल फाइनेंस जो है मॉनिटरिंग मौजूद है। तो एक पहले बेसिक स्ट्रक्चर बन गया कि ऑयल फील्ड्स है, जॉइंट वेंचर है, डेट मौजूद नहीं है, रिकोर्स जब डेट ही नहीं है तो रिकोर्स किस बात का, 3 स्पॉन्सर्स है, 40% एक्सॉन ने देना है, बाकी को भी हम इस तरह लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशनल स्ट्रक्चर है, कैश फ्लोज मैनेजरियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है और इंटरनल मॉनिटरिंग है। सेकंड सेक्शन के अंदर पाइपलाइन एंड लोडिंग फैसिलिटीज है, 3 कंपनीज इन्वॉल्व हैं, डेट का कंपोनेंट 62 से 64% है, लिमिटेड रिकोर्स मौजूद है, 3 स्पॉन्सर और 2 गवर्नमेंट्स मौजूद है, एग्जाम का शेयर 40% ही है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अब कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मल्टीपल स्टेक होल्डर है, कैश के ऊपर डिस्क्रिशन लिमिटेड है और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एक्सटर्नल मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म मौजूद है। तो ये तो इनका बेसिक एक जो है वो स्ट्रक्चर। अब आ जाए फाइनेंसिंग के लिए। अब फाइनेंसिंग के हवाले से आपके पास कारपोरेट फाइनेंस कहाँ कहाँ यूज हुआ। एक स्पॉन्सर है, 100% ओनर ईएम, हम पहली चॉइस पे जाते हैं कि कोई और इसको फाइनेंस करता ही नहीं है कि 100% फाइनेंसिंग किससे कर दी जाए, एक्सॉन खुद इस प्रोजेक्ट को टेकअप कर ले। कितनी इक्विटी चाहिए थी, 1.5 बिलियन खुद ही प्रोवाइड कर दें। दूसरी चीज कि जो एक्सपोर्ट का सिस्टम है उसे भी खुद सारा का सारा फाइनेंस कर दें, तो 322 मिलियन चार्ट के लिए और 1881 मिलियन जो है आपके पास कैमरॉन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो टोटल अमाउंट कितनी चाहिए, 2203 चाहिए, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये प्रोजेक्ट 3.7 बिलियन डॉलर के अंदर टेकअप किया जा सकता है। एक चॉइस हमने की कि कोई दूसरा इसमें शामिल ही ना किया जाए। 100% ओनर एक्सॉन मोबिल, पहले प्रोजेक्ट की 1521 सारी की सारी इक्विटी खुद प्रोवाइड कर दी। दूसरा केस, तमाम इक्विटी फॉर चार्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी एंड कैमरॉन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, वो भी सारी फाइनेंसिंग खुद कर दे 100% इक्विटी के जरिए, और ये 3724 मिलियन से प्रोजेक्ट को टेकअप कर लिया जाए। दूसरी चॉइस कारपोरेट फाइनेंस के अंदर जो इस वक्त आपके पास थी कि हम कारपोरेट फाइनेंस ही यूज करें, ये तीनों स्पॉन्सर्स मिलके चलें, तो स्पॉन्सर 3 हो जाएंगे, ईएम का हिस्सा 40% और बाकी 2 का उसी तरह 35% एंड 25% रेस्पेक्टिवली। तो टोटल अगर फाइनेंसिंग 1521 चाहिए तो उस सूरत के अंदर एक्सॉन मोबिल का शेयर कितना हो जाएगा, 40% ऑफ 1521 608, इसी तरह 35 और 25 बाकी को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। एक्सपोर्ट सिस्टम के लिए टोटल फंडिंग कितनी चाहिए, 2203, एक्सॉन का हिस्सा कितना है 40%, तो 40% ऑफ दिस फिगर ये कैलकुलेट कर ली जाए, और टोटल फाइनेंसिंग एक्सॉन को कितनी चाहिए होगी 608 प्लस 881,
दैट इज इक्वल टू 1489। ये दूसरी आपके पास पिक्चर सामने आ गई। अब नंबर 3 पे आते हैं कि जो इस वक्त प्रोपोज प्रोजेक्ट है, इस प्रोपोज प्रोजेक्ट के अंदर क्या सूरत हाल बनेगी। स्पॉन्सर 3, फाइनेंसिंग सारी की सारी कारपोरेट फाइनेंस से 1521, क्योंकि 3 स्पॉन्सर हैं तो ईएम का हिस्सा कितना होगा 40% ऑफ 1521, ये ऊपर कैलकुलेट भी है तो 1408। पहला सेक्शन मुकम्मल हो गया कि आपने 408 मिलियन की इक्विटी प्रोवाइड की, रेस्ट ऑफ द इक्विटी इज प्रोवाइडेड बाय शेवरन एंड पेट्रोनास। अब इस तरफ आ गए, इसके अंदर टोटल फाइनेंसिंग आपके पास जो थी उसमें कितना कंपोनेंट 123 डेट था और 680 इक्विटी थी। तो अब इक्विटी का 40% क्योंकि प्रोवाइड करना है एक्सन मोबिल ने, तो 40% ऑफ द इक्विटी कैलकुलेट की 321। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 608 प्लस 321 आंसर इज 929 मिलियन। यानी इस वक्त प्रोजेक्ट की जो प्रपोज डॉक्यूमेंट है उसमें एक्सान खुद इन्वेस्ट करेगा 929, बाकी जो है इक्विटी का पोर्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे 60% ऑफ द इक्विटी विल बी प्रोवाइडेड बाय शेवरॉन एंड पेट्रोनास। तीसरी सूरत क्या हो सकती है कि ओवरऑल हम प्रोजेक्ट फाइनेंस पे चले जाएं, दोनों जगह पे प्रोजेक्ट फाइनेंस, तो स्पॉन्सर 3 ही रहेंगे। प्रोजेक्ट फाइनेंस में 60% डेट होगा और 40% ईएम। एक सूरत, क्योंकि प्रोजेक्ट को इनिशिएट कौन कर रहा है, एक्सॉन मोबिल कर रहा है, बाकी तो उसने अपने साथ ऐड करना है कि खुद सारी फाइनेंसिंग करनी है या फाइनेंसिंग करनी है आपने एडिशनल स्पॉन्सर्स के साथ रिस्क को शेयर करके। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपके पास ये जो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड थी 1521, इसका हम माइनस कर देते हैं, इसमें से 60% तो डेट चला जाएगा। जो बाकी अमाउंट आपके पास आएगी उसका पोर्शन ईएम का कितना हो जाएगा 40% ओनर है, तो इसका मतलब है 40% इक्विटी का, और उस 40% इक्विटी में से एक्सॉन का हिस्सा कितना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपने प्रोजेक्ट फाइनेंस दोनों जगह यूज करने का फैसला किया, फील्ड में भी और एक्सपोर्ट में भी। तो हमारे पास हमने पहली शीट में देखा था कि 60%, 62 से 64% डेट था, बाकी इक्विटी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल 1521 का 60% तो डेट फाइनेंसिंग होगी, 40% इक्विटी फाइनेंसिंग होगी। इस इक्विटी में एक्सॉन का हिस्सा कितना था 40% था, तो 14% ऑफ 40 कितना बनेगा 16%। ये 16% ऑफ 1521 2343 मिलियन की इक्विटी होगी। और इसी तरह सेकंड पोर्शन में भी यही सूरत के 60% डेट में चला गया, 40% का 40% प्रोवाइड किया एक्सॉन ने, तो टोटल अमाउंट 352 मिलियन। तो इसकी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होकर 596 मिलियन तक रह जाएगी। अब टोटल प्रोजेक्ट फाइनेंस करें तो 60% फाइनेंसिंग डेट, 40% फाइनेंसिंग बाय इक्विटी बाय स्पॉन्सर, आउट ऑफ 40% फ्रॉम एक्सॉन, 35% फ्रॉम शेवरन एंड 25% फ्रॉम पेट्रोनास। तो ये आपके पास फाइनेंसिंग की ऑप्शन थी कि फुल कारपोरेट फाइनेंस कर दिया जाए एक चीज, फुल प्रोजेक्ट फाइनेंस कर दिया जाए दूसरी चॉइस। आपके पास कारपोरेट फाइनेंस जो है उसके अंदर जो है वो बाकी स्टेक होल्डर्स को ऐड कर लिया जाए। और आखिरी चीज ये आ गई कि आप एक सेक्शन को जो है वो ले जाएं इक्विटी प्रोवाइडर की तरफ और एक सेक्शन को ले जाएं डेट प्रोवाइडर की तरफ। तो अगर ये कारपोरेट फाइनेंस करते हैं तो 1489 मिलियन एक्सॉन को अरेंज करना है, फुल प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं तो ये 596 मिलियन इन लोगों को प्रोवाइड करना है। अगर वो 100% खुद ओनर बनना चाहता है, सब रिस्क एंड रिवार्ड खुद अज्यूम करना चाहता है, तो 3.724 बिलियन जो है इसको प्रोवाइड करना है एक्सॉन को। एक्सॉन ने क्या प्रपोज किया, इन दोनों के दरमियान वाया मीडिया के कुछ पोर्शन जो है वो कारपोरेट फाइनेंस कर दिया जाए और कुछ पोर्शन जो है उसको इक्विटी फाइनेंस कर दिया जाए। इस सूरत में उसकी इन्वेस्टमेंट 930 बिलियन डॉलर जो है उसके इक्वल होगी। यहां तक कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में? सर ये 16% ऑफ
1521 ये इसकी समझ नहीं आई। राइट, आपके पास 100 थे, 100 में से 60 तो डेट में चला गया, तो टोटल इक्विटी कितनी हो गई? इक्विटी हो गई 40%। मैं यहाँ पे लिखता हूं, बल्कि इसको ब्रेक कर देता हूं। इक्विटी 40 और परसेंट, ठीक हो गया। अब इस इक्विटी में टोटल ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3 स्पॉन्सर लिखे हुए हैं। तो इस इक्विटी में से ईएम का हिस्सा एक्सॉन मोबिल का कितना होगा? 40%। तो ये 40% किसका? 40% ऑफ 40, तो 40% ऑफ 40 क्या होगा? 16% होगा। इस तरह कैलकुलेशन की है। क्लियर? यस सर। ये 16% आपने खुद एज्यूम किया है, ये गिवन है यहाँ पे? नहीं, ये देखिए ना, इसमें हमने कहा कि 60% अगर डेट हो तो इक्विटी कितनी होगी? 40% रह जाएगी। ठीक है, 40%। इस 40% जी, इस 40% में 3 स्पॉन्सर हैं, एक शेवरन, एक आपके पास पेट्रोनास और एक एक्सन मोबिल। एक्सन मोबिल का हिस्सा इक्विटी में कितना है? 40% है। तो जब 40 का 40% निकालेंगे तो कितना बन जाएगा? 16%। 16। ये 16 इस तरह कैलकुलेट हुआ। ठीक हो गया जी? सर ये एक्सपोर्ट सेक्शन में जो है 2293, ये किस चीज से? जी, ये एक्सपोर्ट सेक्शन में जो 16% ऑफ 2293 जो है, तो जरा दोबारा बताइए। नहीं 2293 नहीं, 2203 है वो ऊपर वाला, ये वाला 2200। 93 की वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक। हाँ जी, वो ऊपर, वो ये इसका मतलब है कि टोटल फंडिंग है। अगर आपने इसमें देखें, बाकी तमाम में 3 स्पॉन्सर लिखे हुए हैं, इसमें हमने 1 स्पॉन्सर लिखा हुआ है। यानी अगर ईएम सारा प्रोजेक्ट खुद टेकअप करे तो फील्ड सिस्टम के लिए इतने पैसे चाहिए, और एक्सपोर्ट सिस्टम के लिए टोटल 2203 की अमाउंट चाहिए। अब हमने कहा कि उसने अपने रिस्क को डिक्रीज करने के लिए 2 पार्टनर्स और ऐड कर दिए। जब 2 पार्टनर्स उसने और ऐड किए तो उन 2 पार्टनर्स जो हैं, उन 2 पार्टनर्स के दरमियान इक्विटी की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, 40, 35 और 25 हर एक का हिस्सा हो गया। तो अब एक्सॉन के लिए इस सूरत के अंदर, क्योंकि वो तो 40% का पार्टनर है, तो टोटल अमाउंट का 40% उसका होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी जो भी अमाउंट होगी इसका 40% जो है इक्विटी का उसके पास आएगा। ये टोटल अमाउंट थी। यहाँ पे आपके पास इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि टोटल प्रोजेक्ट फाइनेंस पे जा रहे हैं, तो टोटल अमाउंट में से 60% तो अलहदा हो जाएगी कि वो डेट से आएगी, तो सिर्फ 40% ऑफ द अमाउंट बाकी रह जाएगी। उस 40% ऑफ द अमाउंट को 3 हिस्सों में डिवाइड होना है, 40, 35 और 25 की रेशियो में। तो ये शेयर ऑफ द जो है एक्जिम मोबाइल जो है सिर्फ वही यहाँ पे मैंने प्लेस किया हुआ है। ये अब देखें, कोई बात पूछने वाली? सर एक्सपोर्ट सेक्शन का जो स्पॉन्सर एक है, उनकी वैल्यू कौन से आई है? 322 और 1881। ये वो शीट नंबर 3 हमने उसमें देखी थी केस में। एग्जिबिट नंबर 3 को ओपन कीजिएगा, उसमें एक 0 और 1521 था। रिकॉल करें, जहाँ पे मैंने कहा था 89% और 11% मिलके जो है वो चार्ड की कंपनी बनेगी। इसी तरह हमने कहा था कि 5% चार्ड, 10% आपके पास कैमरून की गवर्नमेंट और 85% जो है वो कंसोर्शियम देगा। वहां पे जो है ये ब्रेकअप दिया हुआ है कि कितना डेट होगा और कितनी इक्विटी होगी, तो वो फिगर वहां से पिक की है, इक्विटी वाली और टोटल वाली। So 123 and 680 ये कहाँ से लिया हमने? ये उसी जगह पे ब्रेकअप है। वहां पे 2 चीजें दी हुई हैं, एक डेट और एक इक्विटी। तो ये इक्विटी, ये है पोर्शन इक्विटी का। 123 इक्विटी में है और 680 इक्विटी में है, अगर देखें वहां पे आप। और उस जगह पे जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है? 322 और 1881, यानी 322 चार्ट वाला पोर्शन और कैमरून 1881। तो वहां पे हमने टोटल फाइनेंसिंग बताई कि इतनी थी। अब ये 881 कहां से आया? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैंने लिखा नहीं है। ये शिफ्ट परसेंटेज ऑफ कौन सी अमाउंट का होगा? ये वो जो ऊपर लिखी हुई है 2203 जी। इस अमाउंट का जो है जब आपने कैलकुलेट किया तो वो 881 हो गया। तो ऊपर वो टोटल फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है, उस टोटल में से हमने इक्विटी का हिस्सा अलहदा कर दिया।
अब इसके बाद नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया कि अगर हम इस पोर्शन में तो हमने कोई चेंज की ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हम कारपोरेट फाइनेंस ही यूज कर रहे हैं। इसमें हमने कहा कि हम कारपोरेट फाइनेंस यूज नहीं कर रहे, हम किस में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस में। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि प्रोजेक्ट फाइनेंस में 60% जो अमाउंट है वो तो चली जाएगी डेट को, जो इक्विटी है वो इक्विटी का ये पोर्शन होगा। इस इक्विटी का 40% जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया कि वो एग्जाम मोबिल प्रोवाइड करेगा। जी नेक्स्ट जी, कोई और क्वेश्चन? एग्जीबिट से ये टेबल क्रिएट किए, आगे चलते हैं जरा। इसका पहले हिस्से का जरा आंसर करते हैं। कारपोरेट फाइनेंसिंग फॉर फील्ड सिस्टम क्यों? स्क्रीन पढ़े जा रहे हैं जी, स्क्रीन फुल कर दीजिएगा, अल्फाज थोड़े से पढ़े नहीं जा रहे सर। स्लाइड शेयर मोड पे स्लाइड्स ओपन कर सर, ये जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे स्लाइड शो वाला बटन है ना, ये प्रेस कर दें तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। फंक्शन F5 से किसको होना चाहिए? सर F5 से भी हो जाएगा, मेरा ख्याल हो गई है। यस सर। अब देखते हैं कि कारपोरेट फाइनेंसिंग फॉर फील्ड सिस्टम, द लीड स्पॉन्सर एक्सन मोबाइल हैड AAA रेटिंग, वेरी स्ट्रांग बैलेंस शीट, 145 मिलियन के एसेट, वो जो हमने समरी ऊपर बनाई थी, 16 मिलियन कैश, ये आपके पास बैलेंस शीट में गिवन है। कैन अफोर्ड द फील्ड इन्वेस्टमेंट इन लेस कॉस्टली वे रिलेटिव टू द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। अगर आपके पास आपकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी है, आपके कैश फ्लो भी अच्छे हैं, तो अल्टीमेटली अगर आप उसको जो है वो रिवायती फाइनेंसिंग करेंगे तो उसकी कॉस्ट कम होगी। एक चीज, एक्सन मोबाइल वाज एक्चुअली अ ह्यूज पोर्टफोलियो ऑफ अपस्ट्रीम बिजनेस, वो एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस ये भी करता है। डाउनसाइड बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग एंड सेल्स इसमें भी मौजूद है, एज वेल एज केमिकल बाय प्रोडक्ट्स एंड ऑपरेशंस इन माइनिंग इसमें भी मौजूद है। उसको इस काम का एक्सपीरियंस भी है और उसके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी इस तरह की बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। तो अगर एक और ऐड हो जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप 10 जगह ड्रिलिंग कर रहे थे, 11 जगह ड्रिलिंग हो जाएगी। तो उसके पोर्टफोलियो के अंदर ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है ये रिस्क को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। विद लेस देन परफेक्ट कोरिलेशन अमंग इट्स एसेट, एक्सॉन मोबिल माइट actually have been able to eliminate the idiosyncratic risk via adding a field development project to its portfolio. Corporate financing as opposed to project financing helped ExxonMobil keep the project as a part of its portfolio and reduce risk. जब उसने उसको ऐड किया अपने कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग की, तो इसका मतलब है कंपनी के ही बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ ये उसी का पार्ट बन गया। तो अब कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर एक और जो है वो आपके पास इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हो गई, यानी इसका मतलब है कि R1, R2, R3 के साथ एक R4 भी आ गया। तो बाकी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जब ये ऐड होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के प्रोजेक्ट नहीं है, वो 3 कैटेगरीज में है। उसमें ऑलरेडी अपस्ट्रीम बिजनेसेस भी हैं, उसमें डाउनस्ट्रीम बिजनेसेस भी हैं, उसमें रिफाइनिंग और सेलिंग का अमल भी मौजूद है, माइनिंग भी मौजूद है। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये ओवरऑल रिस्क जो है पोर्टफोलियो का उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन करेगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट को जो है उन्होंने कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर रखा, इसको बैलेंस शीट से बाहर करने की कोशिश नहीं की। Next, beside the vertically integrated business model, made it is naturally cost-efficient choice for Exxon to hold asset collectively with corporate financing rather than individually with project financing. क्योंकि डाउनस्ट्रीम से लेके तो रिफाइनिंग तक मौजूद है, यहाँ से भी जो ऑयल आपके पास आएगा वो उसी का पार्ट उसने बनना है ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए कि इसे सेपरेट रखने की नेसेसिटी नहीं है। हमने 2 बातें वहां पे पढ़ी थी कि जब आप प्रोजेक्ट को पिक करते हैं तो हम बात करते हैं कि या इस प्रोजेक्ट का रिस्क ओवरऑल रिस्क को आपका एडवर्सली इफेक्ट करता है या ओवरऑल रिस्क की वजह से प्रोजेक्ट का जो रिस्क है वो एडवर्सली इफेक्ट करता है। 2 बातें होती है ना, प्रोजेक्ट और कंपनी को आप कंबाइन करने जा रहे हैं, इसमें हमने काफी डिटेल से बात की थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट को अगर कंपनी के साथ ऐड करें तो कंपनी का तो ऑलरेडी लो रिस्क है डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, तो प्रोजेक्ट के रिस्क की वजह से कंपनी के ओवरऑल रिस्क के अंदर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता।
दूसरी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट वैसा ही है जैसे प्रोजेक्ट जो है कंपनी हिस्टोरिकली करती आ रही है। तो कंपनी के एग्जिस्टिंग जो अपस्ट्रीम ड्रिलिंग का रिस्क है वो रिस्क जो है इस प्रोजेक्ट की वजह से बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो नंबर ऑफ जो है वो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स में अक्रॉस द ग्लोब मौजूद है। तो इन दोनों को कंबाइन करने से आपके पास रिस्क रिड्यूस हो रहा है, रिस्क इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर ये रिस्क इंक्रीज होता तो हम इसको रखते प्रोजेक्ट फाइनेंस में अपनी कंपनी की बैलेंस शीट से बाहर। अब इस केस में क्योंकि रिस्क डिक्रीज हो रहा है डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, तो इसे बैलेंस शीट से बाहर रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या प्रेफर किया कि इस स्पेसिफिक फंक्शन को ऐड कर दिया जाए अपनी ही कंपनी के बाकी पोर्टफोलियो के साथ। कोई क्वेश्चन देन में क्लियर? सर मीन्स कि ये डाइवर्सिफिकेशन की तरफ इसको मतलब कि इसकी लेके जा रहे हैं इसको। राइट। बात ये कि कंपनी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जिस एरिया में उसने डाइवर्सिफिकेशन की हुई थी उसी एरिया का एक और इन्वेस्टमेंट ऐड हो रही है, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी मिलेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, इसे बैलेंस शीट के ऊपर जो है वो शामिल करना चाहिए, इसे बैलेंस शीट से बाहर नहीं रखना चाहिए। बैलेंस शीट से बाहर हम क्यों रखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को? एक रीजन कि उसे बैलेंस शीट पे लाने से बैलेंस शीट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है, यानी एक रिस्की प्रोजेक्ट के ऐड होने से ओवरऑल रिस्क ऑफ द कंपनी इंक्रीज होता है। इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंपनी इसकी पूरी वर्टिकल इंटीग्रेशन है, इस पूरी चेन की तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो इसके ऐड होने से जो डाइवर्सिफिकेशन की कंपनी का बेनिफिट है वो प्रोजेक्ट को मिलेगा। प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी को कोई लॉस नहीं होगा, कंपनी के रिस्क के ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए इसको बैलेंस शीट से बाहर रखने का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, इसकी कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग करनी चाहिए ताकि हम जो रिस्क एलोकेशन है उसको ऑप्टिमाइज कर सकें। ये अब कोई क्वेश्चन देन में? राइट सर। सर अगर ये प्रोजेक्ट फाइनेंस के थ्रू करती है तो इसको फायदा नहीं होगा? नहीं, उसकी वजह ये है कि फिर ये प्रोजेक्ट जो है ये स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो इसकी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी, जबकि कंपनी के साथ ऐड होके इसकी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। कंपनी अगर जो है वो वीक होती तो फिर इसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता। कंपनी क्योंकि स्ट्रांग है तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस और इसमें प्रोजेक्ट फाइनेंस दोनों में से ज्यादा बेनिफिट किसमें हो? देखिए, हमने इसमें जो है बात की थी कि आपके पास जहां पे रिस्क ज्यादा है और उस रिस्क को आप अपनी बैलेंस शीट से दूर रखना चाहते हैं तो वहां पे आप प्रोजेक्ट फाइनेंस में चले जाते हैं। जहां पे प्रोजेक्ट को बैलेंस शीट में लाने से आपके प्रोजेक्ट के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट आता है, वहां पे आप उस प्रोजेक्ट को जो है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में ले जाते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक्सन मोबाइल एक जो है वो रिनोन्ड नेम है, AAA रेटेड है, कैश फ्लो हाई है, बैलेंस शीट बड़ी है, कंपनी का जो है वो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, कंपनी की डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है। तो नतीजा क्या निकलेगा, अगर प्रोजेक्ट इसके साथ ऐड होगा तो जो कंपनी के प्रोफाइल का बेनिफिट है वो बेनिफिट प्रोजेक्ट को भी मिलेगा। यानी इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग अगर आप स्टैंड अलोन करेंगे तो इसके ऊपर आपको हाई कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, लेकिन अगर जो है इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग आप कंपनी की बैलेंस शीट के जरिए करेंगे, यानी कंपनी की बैकिंग के ऊपर आप बारो करेंगे या इक्विटी इशू करेंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम होगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इस प्रोजेक्ट को बाहर रखने के बजाय उसे इन कर दिया जो है वो बैलेंस शीट के ऊपर। और कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब है कि कंपनी जो है वो ये प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ द कंपनी है, और प्रोजेक्ट फाइनेंस का मतलब है कि कंपनी अपने बाकी सारे के सारे जो कैश फ्लोज हैं उन्हें इस प्रोजेक्ट के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रिस्की है। तो यहाँ पे क्या था कि कंपनी की जो स्ट्रांग पोजीशन है उसकी वजह से बेनिफिट जो है वो किसको, प्रोजेक्ट को मिल रहा है। तो इसलिए उन्होंने प्रेफर किया कि हम कॉर्पोरेट फाइनेंस यूज करेंगे। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग probably also enabled managerial flexibility and discretion over the use of oil wells, drilling equipment that constitute the field system। क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस है तो किसी को अपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, एक रिसोर्स दूसरी जगह पे यूज करना है, सूडान से कुछ रिग्स इधर शिफ्ट करनी है, ये सारी की सारी जो आपको डिस्क्रिप्शन है मैनेजरियल, ये कंपनी की फॉर्म में मिल गई।
لیکن جب آپ پروجیکٹ فائنانس کریں گے تو آپ کو معلوم ہے اس میں تین چیزیں ہیں، اسٹینڈ الون کمپنی ہے، دو ریکورس ڈیٹ ہے، اور جو ہے اس کا مین کمپنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ جو اس کے ریسورسز، کمپنی کے ریسورسز آپ یہاں پہ آپٹیمائز کر سکتے تھے، وہ پروجیکٹ فائنانس میں آپ آپٹیمائز نہیں کر پا رہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کارپوریٹ فائنانسنگ جو ہے وہ انیبل کر دیتی ہے مینیجریل ڈسکریشن کو اور مینیجریل فلیکسیبلٹی اینڈ ڈسکریشن کو اوور دا یوز آف آئل ویلز. ڈرلنگ اکوپمنٹ ہے، آپ کے پاس سوڈان کے اندر ایک ڈرل کام کر رہی تھی، فارغ ہوئی ہے، اٹھا کے ادھر بھیج دیا آپ نے چارٹ کے اندر، چارٹ سے فارغ ہوگی تو اس کو واپس ادھر لے جائیں گے. پروجیکٹ فائنانس میں ایسا کچھ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو ڈسکریشن تھی اس اسپیسیفک ورک کے حوالے سے، جہاں پہ ایک اسٹیبلش پروون ٹیکنالوجی ہے، ایک خاص جگہ کے اوپر کام ہے، ہر طرف پھیلا ہوا نہیں ہے، آپ نے بہت سارے لوگوں سے انٹیکٹ نہیں کرنا، ایک خاص ویسینٹی میں، ایک خاص یونین کونسل میں، ایک خاص جگہ کے اوپر جو ہے وہ کرنا ہے، تو اس کا رسک ریلیٹیولی کم. نیکسٹ پہ آئیے. فیلڈ ڈیولپمنٹ واز لیس رسکی پارٹ آف دا انٹائر پروجیکٹ فار دا اسپانسر بیکاز اپ اسٹریم آپریشن انکلوڈنگ فیلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکشن was one of the core area of the business where they were very strong. Exxon, Petronas, ساری زندگی یہی کام کرتے آئے کہ آئل کی ڈرلنگ کرتے رہے، تو انہیں اس کے اندر ایکسپیرینس ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ اس کی فیزیبلٹی کیسے بنانی ہے، اکنامک وائبلٹی کیسے دیکھنی ہے، اس کی ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں ہمیں جو انفارمیشن چاہیے اس کی ایکسپرٹیز ہمارے پاس موجود ہے، ریزلٹ کو کیسے ویریفائی کرنا، یہ ساری کی ساری اس چیز کے اندر ان کا اسٹرانگ ایریا ہے. تو اب اس میں اگر اس کا اسٹرانگ ایریا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایڈوانٹیج انہیں یہاں پہ لینا چاہیے. دس ریڈیوس دا کاسٹ آف بیئرنگ دیز رسک دیم سیلف سنس دے ور بیٹر اکوپڈ دین اینی ون ایلس. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام جیسے یہی پنجاب گروپ ہے، اس کا ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر ایک ایکسپیرینس ہے جس کے اندر جو ہے وہ لوئسٹ لیول سے ہائیسٹ لیول تک. تو اگر اسی فیلڈ کی کوئی ایکٹیویٹی ہو، کوئی میڈیکل کالج بنانا ہو، تو اس گروپ کے لیے اس ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر جو ہے ایکسپینشن کوئی ایشو نہیں ہے. انہیں معلوم ہے کہ سسٹم کیسے ہوتے ہیں، باقی ساری کی ساری چیزیں کیسے ورک کرتی ہیں، باقی ریسورسز کو جو ہے وہ کیسے یوز کیا جا سکتا ہے. کوئی لا کالج بنانا ہو، یونیورسٹی کے اندر کوئی ایک نئی فیکلٹی ریز کرنا ہو، یہ کوئی جو ہے وہ نہیں. لیکن اگر یہی آئل کی ایکسپلوریشن ہے تو ہمیں کچھ نہیں پتا. تو یہاں پہ ایک چیز آ گئی کہ یہ لو رسک کی ڈومین تھی اور اس ایریا کے اندر ایکسپرٹی لیول بھی ہائی تھا، انہیں کمپیٹنسی بھی تھی اس حوالے سے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پریفر کیا کہ یہاں پہ کارپوریٹ فائنانس کو یوز کیا جائے. پروجیکٹ فائنانسنگ فار ڈیولپمنٹ پروجیکٹ would also not be viable financing option as lenders generally would be reluctant to finance until after all reserves are proven and capable of production. یہاں پہ جب آپ ڈرلنگ کرتے ہیں تو بات ہوتی ہے تین، پروون، پروبیبل. آپ کے پاس دو لفظ یوز ہوتے ہیں کہ کتنے جو ہے وہ ریزرو ایسے ہیں جن کے بارے میں گارنٹی ہے کہ یہ ملیں گے، یہ ان کا جو سائز آف دا ریزروز ہے یہ کہاں تک جا سکتا ہے. دوسری بات آپ کے پاس آ گئی. تو اب جب آپ فائنانسنگ کے لیے ڈیٹ پرووائڈر کے پاس جائیں گے تو ڈیٹ پرووائڈر جو ہے وہ تو آپ کو جو ہے وہ پاسبل پروبیبل کے اوپر فائنانسنگ نہیں کرے گا، وہ تو صرف فائنانسنگ کس کے اوپر کرے گا، پروون اور کیپیبل آف پروڈکشن. آپ نے ڈرلنگ کر لی، آئل نکل آیا، روزانہ اتنا آئل جو ہے اس میں پروڈیوس ہو سکتا ہے. اب فائنانسنگ کرنے کے لیے فائنینشیل انسٹیٹیوشن جائے گا، گارنٹیڈ اس کے اوپر، ان نون کے اوپر پروجیکٹ فائنانسنگ جو ہے اس کی کاسٹ زیادہ ہو جائے گی. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جب وہ پروجیکٹ اور کارپوریٹ فائنانس کی لسٹ پڑھی تھی تو ہم نے کیا کہا تھا کہ پروجیکٹ فائنانس میں ہمیشہ جو اسٹیبلش اور جو ہے ویل ٹیسٹڈ ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے جس میں انسرٹنٹی کم ہو. Corporate financing for field system. The crude oil prices for the last 18 years range from $9 to $42, averaging $20 barrel, which even after discounted for the lower grade was considerably higher than project 5.2 exploration and development cost, with a total proven plus probable reserves of 917 million barrels. Downside exposure to price and resource risk was already mostly eliminated. بات ہے کہ ہماری کاسٹ تو $5.2 ہے، یہ 20 سے کم ہوتی ہوئی 9 بھی دوبارہ آ جائے تو پروجیکٹ پھر بھی وائبل
रहेगा। तो अगर इसके अंदर रिस्क नहीं है तो हमें इसके प्रॉफिट को जो है वो डेट प्रोवाइडर को क्यों देना चाहिए? हमें तो इसकी फाइनेंसिंग खुद ही करनी चाहिए, इसके फुल बेनिफिट्स को जो है वो खुद जो है उसमें लेने की तरफ जाना चाहिए। अगर इसकी कास्ट हाई होती, आपने वहां पे एक लफ्ज यूज किया था ओवर इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, उसमें हमने क्या कहा था कि कारपोरेट फाइनेंस में जब रिस्क ज्यादा हो तो मैनेजर क्या करते हैं कि डेट वालों से डेट बारिंग करके प्रोजेक्ट को टेकअप कर देते हैं, ताकि अगर जो है ये वर्क कर गया तो हमें हमें हमारे पुराने जो लॉसेज हैं वो कवर हो जाएंगे, और अगर नहीं किया तो ये नुकसान जो है वो किसका होगा? डेट प्रोवाइडर को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो पहले ही इक्विटी प्रोवाइडर को देने के लिए कुछ नहीं है, तो हमें चांस लेने में कोई हरज नहीं है। तो यहाँ पे भी वही चीज कि ये तो वो डोमेन है जिसके अंदर रिस्क नहीं है, कास्ट लो है, जबकि प्रॉफिट जो है वो मार्केट प्राइस रेवेन्यू हाई है। तो ये एरिया जो है ये रिस्की नहीं है, तो इसके अंदर हमें जो है वो कारपोरेट फाइनेंसिंग करनी चाहिए, हमें प्रोजेक्ट फाइनेंस में नहीं जाना चाहिए। नो सीरियस नीड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डाउन साइड रिस्क विद प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड इंकरिंग हायर इंटरेस्ट रेट एंड लोन फी। वहां पे हमें इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा, प्रोसेसिंग की फी भी देना होगी, कंटेक्चुअल कास्ट भी इन्वॉल्व होंगी, जबकि डाउन साइड रिस्क इतना है ही नहीं कि जिसको हज करने की जरूरत हो। तो इसलिए प्रेफरेंस क्या है कि हमें फील्ड सिस्टम के लिए कारपोरेट फाइनेंस को यूज करना चाहिए। Corporate finance probably also helps save both the costly delays at the development stage of the project and structuring costs which would be incurred in project financing. हमने बात की थी कि ट्रांजैक्शन कास्ट हाई है, टाइम ज्यादा लगता है, बहुत सारे लातदार लीगल चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर हमें ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। प्रोजेक्ट जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसमें, क्योंकि कंपनी फाइनेंसिंग कर रही है, कोई वर्ल्ड बैंक नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम इसको जो है वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक शख्स, कौन? वही इदरीस डेबे, उसके साथ जो है निगोशिएट करके इस प्रोजेक्ट को टेकअप कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई जो है वो डिले इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये जनाब आपके पास एक और रीजन थी कि इसमें एक सिंगल पार्टी को हैंडल करना होगा, तो डिले वगैरह जो है उसको भी सेव किया जा सकता है। तो ये वो रीजन थी जिसकी वजह से इन लोगों ने प्रोजेक्ट फाइनेंस के ऊपर प्रेफर किया कारपोरेट फाइनेंस को। अब बात करते हैं कि दूसरी जगह पे ये सब कुछ क्यों नहीं किया। एक्सपोर्ट सिस्टम वाज द रिस्किएस्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग फॉर द एक्सपोर्ट सिस्टम मेनली इनेबल्ड द स्पॉन्सर्स टू स्प्रेड political risk as much as possible via presence of outside lenders, वर्ल्ड बैंक, IFC, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज। ये अब ये सेकंड सेक्शन था जिसके अंदर 2 कंट्रीज मौजूद थे, उनकी गवर्नमेंट्स मौजूद थी, उस लैंड की एक्विजिशन मौजूद थी, इन्वायरमेंट वाले मौजूद थे, सोसाइटी मौजूद थी, सिविल वार मौजूद थी। तो अब यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे रिस्क ज्यादा था प्रोजेक्ट का। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होने की वजह से उन्होंने क्या सोचा कि इस पोर्शन के अंदर हम अपने पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय हम इसमें मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग करते हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो, जिनमें गवर्नमेंट्स भी हो इन्वॉल्व, जिसके अंदर जो है वो इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसीज भी मौजूद हो, ताकि रिस्क एलोकेशन जो है उसको देखा जा सके। वहां पे देखा ना कि जो रिस्क को सबसे बेहतर जो है वो बेयर कर सकता है, वो रिस्क उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए। The expectation was that Chad and government and Cameroon's governments would be less likely to take or tolerate adverse actions against the project in fear of jeopardizing future funding from World Bank. अगर हमने यहाँ पे पैसे लगाए तो ये गवर्नमेंट रूल्स भी बदलेंगी, टैक्स लॉ भी बदलेंगी, हमें बार बार इन्वॉल्व भी होंगी, मल्टी तरह के NOCs और वो सारा का सारे जो इश्यूज हैं वो इसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के वो मौजूद होंगे। लेकिन अगर हम वर्ल्ड बैंक को इन कर लेंगे तो फिर उसकी वजह से ये गवर्नमेंट्स जो हैं ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी कि वो इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के हवाले से एडवर्स एक्शन लें। चाइना की गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लगाती है ना, तो चाइना की गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट लगाया है, गवर्नमेंट उसके अंदर ज्यादा एक खास हद से ज्यादा इंटरवीन नहीं कर सकती। रीजन क्या है कि अगर एक दफा इंटरवीन करेंगे तो प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे, वो बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग भी रोक लेंगे। उसके अलावा आपकी सिर्फ ये 2 चीजें नहीं है, बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आपको चाइना का वोट भी चाहिए, चाइना की मदद भी चाहिए, आपको जो है उसकी डिफेंस जो है सपोर्ट भी चाहिए।
तो अगर आप जो है इस तरह की गवर्नमेंट के साथ जो है के प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है अगर क्रीपिंग करेंगे तो उसकी सिर्फ एक कास्ट नहीं है प्रोजेक्ट की, उसकी बहुत सारी कास्ट है, फाइनेंशियल भी, नॉन फाइनेंशियल भी, पॉलिटिकल भी। इसी तरह इंटरनेशनल एजेंसीज के अंदर आप उस प्रोजेक्ट में करेंगे तो जिन एजेंसीज के बोर्ड के ऊपर उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो आपका कोई प्रोजेक्ट जो है उसको अप्रूव भी नहीं होने देंगे। तो इसलिए ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसकी एक्सप्रोप्रिएशन या गवर्नमेंट के का जो नेगेटिव रोल है उसकी चांसेस जो है वो ज्यादा हों, तो वहां पे क्या चीज होती है, वहां पे आप कॉर्पोरेट फाइनेंस कंपनी की का रिस्क नहीं बल्कि आप उसको प्रोजेक्ट के रिस्क में कन्वर्ट करते हैं और उस प्रोजेक्ट के रिस्क की एलोकेशन करते हुए उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं जिनमें कंट्रीज भी हैं, गवर्नमेंट्स भी हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। Additionally, it facilitated alignment of government's interests with project through equity ownership, which would not have been possible otherwise as government is not afford on their own. चार्ट की गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट करने को कोई पैसा नहीं है, चार्ट की गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, ये पैसे प्राइवेट सेक्टर नहीं देगा गवर्नमेंट को, ये पैसे कौन देगा, ये मल्टीलेटरल एजेंसी देंगी। तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड बैंक लोन देगा चार्ट की गवर्नमेंट को और चार्ट की गवर्नमेंट उस कैश को इक्विटी के तौर के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी। तो आपने प्रोजेक्ट के अंदर इक्विटी ओनरशिप के जरिए उनके इंटरेस्ट को और अपने इंटरेस्ट को अलाइन करने की तरफ आ गए। ये अलाइनमेंट जो है ये मल्टीलेटरल एजेंसी के बगैर मुमकिन नहीं थी क्योंकि वो कंट्रीज जो है वो कंट्रीज खुद फंडिंग या फाइनेंसिंग करने की कैपेबिलिटी इस प्रोजेक्ट की नहीं रखते। जी यहाँ तक देखिए कोई बात पूछने वाली? नेक्स्ट पे आते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आल्सो क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी फॉर द पाइपलाइन कंपनीज JVs between governments and sponsors to issue limited recourse debt guaranteed by the sponsor through completion। कि अगर जो है वो डेट है और ये प्रोजेक्ट टाइमली मुकम्मल हो जाता है तो उस सूरत के अंदर जो है ये डेट प्रोवाइडर जो है वो एक लिमिटेड रिकोर्स यानी वो पेरेंट कंपनी को कह सकता है कि उसकी जो फाइनेंसिंग है उसकी डेट सर्विसिंग की जाए, उसके प्रिंसिपल की एज पर एग्रीड प्लान रिडम्पशन की जाए, जो शायद कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको सोली ये रिस्क खुद लेना पड़ता। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग फॉर द एक्सपोर्ट सिस्टम। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एनेबल्ड एक्सटर्नल मॉनिटरिंग फ्रॉम द लेंडर। अब वर्ल्ड बैंक भी मॉनिटरिंग करेगा, अब IFC भी मॉनिटरिंग करेगी, अब एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी भी मॉनिटरिंग करेगी। तो जितने भी डेट प्रोवाइडर हैं वो सारे के सारे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉनिटरिंग करने की तरफ जाएंगे। जबकि इनके पास क्या सिचुएशन थी कॉर्पोरेट फाइनेंस में, दे वर सपोज टू मॉनिटर थ्रू देयर इंटरनल डिपार्टमेंट, जिसके पास कोई इख्तियार ताकत नहीं है कि वो दूसरे कंट्री के अंदर अपनी कंपनी से बाहर किसी भी चीज को असर्ट कर सके। तो इसमें क्योंकि आपने मल्टीपल पावरफुल स्टेक होल्डर्स इन कर लिए तो अब ये एक्सटर्नल मॉनिटरिंग इस प्रोजेक्ट की हो सकेगी। Exxon Mobil also reduced total investment commitment to the project under corporate finance project finance structure compared to that under a complete corporate finance structure। हमने भी वो एक टेबल देख रहे थे कि अगर सारी फाइनेंसिंग खुद करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के जरिए तो उनकी अमाउंट इन्वेस्ट होती है 3.7 बिलियन। अगर जो है वो फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट फाइनेंस को तीन पार्टनर्स के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो $1,500 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ता है, और अगर प्रोजेक्ट और कॉर्पोरेट फाइनेंस को कंबाइन करते हैं तो उन्हें $930 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ता है, और टोटल प्रोजेक्ट फाइनेंस पे चले जाएं तो सिर्फ $600 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उन लोगों ने क्या किया कि इस प्रोजेक्ट का जो लेस रिस्की पार्ट था वो तो टोटली अपने पास रिटेन कर लिया फील्ड सिस्टम के जरिए, और जो रिस्की पार्ट था उसके अंदर फाइनेंसिंग करते हुए प्रोजेक्ट फाइनेंस जो है उसको यूज कर लिया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट भी रिड्यूस हो गई, और रिडक्शन में क्या हुआ कि जो लो रिस्की कंपोनेंट था वो टोटली आपके पास रहा, और जो हाई रिस्की कंपोनेंट है उसके अंदर रिस्क की शेयरिंग हो गई थ्रू स्पॉन्सर, थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू डेट प्रोवाइडर। यहां तक जनाब कोई क्वेश्चन? अगर अब एक क्वेश्चन हो कि इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के हवाले से
एक्सॉन ने फील्ड सिस्टम के लिए प्रेफर किया कारपोरेट फाइनेंस को और एक्सपोर्ट सिस्टम के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस को जस्टिफाई. Exxon Chemical preferred corporate financing for field system and project financing for export system. Evaluate the financing strategy of Exxon Chemical. क्या आंसर करेंगे? इस डिस्कशन के बैकग्राउंड में इसका आंसर लिखा जा सकता है? सर इस क्वेश्चन की समझ ही नहीं आई. यस सर. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. एक्सॉन केमिकल ने फील्ड सिस्टम के लिए कारपोरेट फाइनेंस को यूज किया और एक्सपोर्ट सिस्टम के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस को यूज किया. ऐसा करने का क्या फायदा था? क्लियर? सर ये सारी डिस्कशन हमने अभी की है, इसके बैकग्राउंड में इसको रिव्यू करके आंसर लिखा जा सकता है, जस्टिफिकेशन दी जा सकती है. जैसे इसी डिस्कशन के बैकग्राउंड में यही चीज कि उस एरिया में ये चीजें थी, ये रिस्क कम था, इनको ये एडवांटेज थे, इसलिए हमने कारपोरेट फाइनेंस यूज कर दिया. इस जगह में ये रिस्क आए थे जिसकी वजह से अगर हम इसको कारपोरेट फाइनेंस में लाते तो हमें ये प्रॉब्लम हो सकते थे, लिहाजा हमने क्या किया, प्रोजेक्ट फाइनेंस को प्रेफर कर लिया. इस वीक में आपने जो है उसे वो करना है, इसकी एक जो है ये आंसर करना है कि इस प्रोजेक्ट का डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को क्या फायदा था और क्या नुकसान था. प्रोजेक्ट रिस्क एंड रिटर्न चार्ड को क्या था, कैमरॉन को क्या था, वर्ल्ड बैंक को क्या था, एक्सॉन को क्या था, वो तो तीनों इकट्ठे आएंगे. स्पॉन्सर्स को क्या था. बस ये एक क्वेश्चन चैप्टर की रीडिंग कर. What are benefits and risk associated with different stakeholder? What are benefits and risk associated with different stakeholder? कौन से stakeholder? Governments यानी चार्ड और कैमरॉन, दोनों इनको क्या फायदा था? गवर्नमेंट नहीं, कंट्रीज को, चार्ड और कैमरॉन इनको क्या फायदा था? वर्ल्ड बैंक को क्या फायदा था और स्पॉन्सर को क्या फायदा था? तीन लोग इसमें मौजूद थे, चार्ड और कैमरॉन, दूसरा स्पॉन्सर और तीसरा वर्ल्ड बैंक. के तीनों को इसका क्या फायदा और नुकसान था इस प्रोजेक्ट को टेकअप करने के हवाले से. कैमरॉन तो डिपेंडेंट था ना, चार्ड अगर पहला पार्ट करेगा तो कैमरॉन का दूसरा पार्ट हो सकता है. अगर चार्ड जो है वो एक्सप्लोरेशन का कंटेक्ट ही नहीं करता तो कैमरॉन वाली पाइपलाइन तो बनेगी ही नहीं. तो इसलिए वो चीज आ गई कि चार्ड को इसका क्या बेनिफिट था और रिस्क था, वर्ल्ड बैंक को क्या फायदा और नुकसान था, और स्पॉन्सर्स को क्या फायदा और नुकसान था. अलग स्पॉन्सर्स का नहीं लिखना कि एक्सॉन, पेट्रोनास, क्योंकि उन तीनों का ऑब्जेक्टिव एक ही था, एज अ इक्विटी प्रोवाइडर. तो ये जनाब इस वीक की आपकी असाइनमेंट. मैं इसको असाइनमेंट सेक्शन के अंदर आपको प्लेस भी कर देता हूँ उसकी तारीख के साथ, ताकि जो है वो आप सब तक चली जाए. एक क्वेश्चन है, वन जो ना जी अपना सेंटेंस है कि व्हाट आर बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. कौन कौन से स्टेक होल्डर? चार्ड, वर्ल्ड बैंक और स्पॉन्सर्स, तीनों के लिए. कोई क्वेश्चन यहां तक, कोई बात पूछने वाली? सर जो एक पॉइंट था ना जो आपने ज्वाइंट वेंचर का बताया था कि अपॉर्चुनिटीज इससे डेवलप गवर्नमेंट का, उसको अगर आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर दें. इससे शायद प्रीवियस स्लाइड में था. राइट. बात ये है कि आप जब कंट्री में वर्क कर रहे थे तो आपने उस प्रोजेक्ट के लिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जब आप किसी कंट्री के अंदर प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आप एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं. अब वो नई कंपनी ये तीनों मिलकर फॉर्म करेंगे, शेवरन, पेट्रोनास और ये. जॉइंट वेंचर कंपनी बुनियादी तौर पे एक ऐसी कंपनी होती है कि जो ओरिजिनल कंपनी से सेपरेट होगी, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म की जाएगी. जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो वो कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी. जैसे ये जॉइंट वेंचर कंपनी बनाएंगे कि ये जब तक जो है वो ऑयल वहां से निकलता रहेगा ये कंपनी एग्जिस्ट करेगी. 1932 में एज पर एक्सपेक्टेशन जब ऑयल की एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस खत्म होगा तो ये जॉइंट वेंचर क्लोज हो जाएगा. तो जॉइंट वेंचर की तीन बातें होती हैं. पहली चीज ओरिजिनल कंपनी से डिफरेंट होती है. नंबर 2,
इसकी लाइफ लिमिटेड होती है, नंबर 3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये गोइंग कंसर्न की assumption के ऊपर नहीं होती, सबसे बड़ी बात। जी, और कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर एक कंट्री पे के जीटीपी जो भी है उस पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कितना असर होता है सर? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का उस बात पे ये कितना कि असर? जीडीपी क्या चीज, बुनियादी तौर पे जीडीपी क्या चीज होती है? जीडीपी होती है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, ठीक है। अब आप देखें कि अगर एक कंट्री के अंदर जो है वो बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या करेगी? गुड्स प्रोड्यूस करेगी या सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, तो जीडीपी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जो आपका 1 रुपी इन्वेस्टेड जिस तरह कंट्रीब्यूट करता है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस में, वही रोल किसका होता है? वही रोल जो है वो आपके पास आता है। लेट सपोज आप इस तरह कहें एक कंट्री है, उसमें सिर्फ 100 लोग हैं, ठीक है। 100 में से आपके पास जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसके जरिए जो आप जो है प्रोडक्ट, जो आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरह की हो, एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, 50 लोगों को आप उसके अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 50 लोग आपके बेरोजगार हैं, एग्री। अब अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो आपके 100 के 100 लोग जो है वो किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन हो गए। तो अगर पहले आपके 50 लोग लेटर सपोज 100,000 प्रोड्यूस कर रहे थे, तो अब 100 लोग कितने करेंगे? डबल कर लेंगे। इसका मतलब है कि जितना आप लोगों को इंगेज होते चले जाएंगे, जितने लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐड होते चले जाएंगे, तो उसके मुताबिक आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर रुपी इन्वेस्टेड जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो जो कंट्रीब्यूशन लोकल का, वही कंट्रीब्यूशन या उससे बेहतर कंट्रीब्यूशन जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। बुनियादी तौर पे बात यह है कि कंट्री के अंदर प्रोडक्शन में इजाफा होना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, सर्विस है, किसी भी सेक्टर में। तो हर नया वर्क, हर नई जॉब, हर नया बिजनेस जो है वो आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाता है। इसलिए एफडीआई जितनी ज्यादा होगी, इतना ज्यादा जो है वो आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, आपके लोगों की इनकम बढ़ेगी, आप एक्सपोर्ट करेंगे, आपके फॉरेन कैश फ्लो आना शुरू हो जाएंगे, आपके पास आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये तो सारा का सारा उस प्रोडक्शन के अमल के साथ कनेक्टेड है। प्रोडक्शन के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आप इस तरह देखें, एक शख्स है वो 100 रुपए अर्न करता है, 100 के 100 कंज्यूम कर लेता है। दूसरा शख्स 100 रुपए अर्न करता है, 60 कंज्यूम करता है, 40 जो है वो या 70 कंज्यूम करता है, 30 रुपए इन्वेस्ट कर देता है। 10 साल के बाद दोनों में क्या फर्क होगा? जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो कहीं आगे निकल जाएगा, जो सारे कंज्यूम कर रहा था वो वहीं पे रहेगा। अब एक चीज आ गई कि एक शख्स के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो बाहर से अगर कहीं से उसको जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट मिलना शुरू हो जाए, तो वो भी इस एक्टिविटी में इन हो जाएगा। उसकी कास्ट पे करके भी उसको जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो गेन जो है उसका रहेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो चाहे डोमेस्टिक सेविंग से हो और चाहे आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में हो। समटाइम जैसे ये केस है, चार्ट तो अगले 20 साल भी जो ना जी अपना निकालने के काबिल ना होगा, क्योंकि ना टेक्नोलॉजी, ना एजुकेशन, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना पास पैसे। जिस तरह अरबी 1969 तक सिर्फ और सिर्फ ऑयल के वेल के ऊपर चारपाई डाल के बैठे होते थे ना, यही सूरत हाल उनकी भी थी। कोई और इन्वेस्टमेंट और वो लेके आया, तो वो जो चेंज है वो आपको दुबई से लेके पूरे मिडिल ईस्ट में नजर आती है। ये एफडीआई की ही आउटकम है ना। अगर वो पहले दिन फैसला करते कि हमने अमेरिकन को यहाँ पे एक्सप्लोरेशन नहीं करने देनी, तो ये सब कुछ होता। सर इस लोन भी तो इंक्रीज हो रहा है ना 100। बात ये है कि आप लोन लेते हैं, 100 रुपए का मैं लोन लेता हूँ, मैंने 5 रुपए उस पर इंटरेस्ट लेना है। अगर मैं उससे 10 रुपए अर्न करता हूँ तो ये लोन मुझे कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं 5 पे करके भी 5 सरप्लस में हूँ। लेकिन अगर मैं 100 रुपए लोन लेता हूँ और उसके बाद उसके ऊपर जाके मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लेता हूँ, तो ये लोन बढ़ता चला जाएगा। लोन अगर जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए है तो लोन में कोई मसला नहीं है। लोन अगर कंजम्पशन के लिए है तो आपको आने वाले पीरियड में वर्स ऑफ करता चला जाएगा। तो इसलिए अगर वो एक अर्निंग एसेट क्रिएट कर रही है बोरिंग, आपने पैसे लोन लिया, लोन लेके आपने एक हाउस बिल्डिंग जो है ना घर की कंस्ट्रक्शन कर ली, तो आपको बेनिफिट होगा। लोन लेके कंज्यूम कर दिया किसी शादी के ऊपर, तो वो कोई फायदा नहीं, फिर नुकसान होगा। लोन लेके आपने जो है वो लैंड परचेज कर ली,
तो आपको बेनिफिट होगा। लोन लेके अगर आपने जो है उसको अपने डेली एक्सपेंडिचर के लिए जो है ना वो यूज कर लिया, कार परचेज कर ली, तो फिर उसका आपको जो है वो नुकसान होगा। ये तो लोन गुड या बैड नहीं है, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि लोन का यूज आप क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। चलें इंशाल्लाह यहीं एक्सक्यूज मी से आगे सर, बात जो है ना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जी बताइए। एक्सक्यूज मी सर, सर एफआरएम से रिलेटेड जी दो बताइए। क्वेश्चन है सर। जो जी दो बताइए। फाइल्स आपने शेयर की थी, एक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटजीज और एक ऑप्शंस की, तो उसमें सर हम कौन सा यूज करेंगे प्रोजेक्ट के लिए? मैंने कहा था कि जो मेरे पावर पॉइंट वाली प्रेजेंटेशन के अंदर स्ट्रेटजीज है ना, वो सारी की सारी आपने जी वो सर। प्रोजेक्ट के तौर पे सबमिट कर, ठीक है। वो जो 26 की मैंने लिस्ट शेयर की थी, उसको मैंने कहा था कि अभी आप उसकी रीडिंग लेंगे। ये 26 दुनिया में शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज सबसे बड़ी एक्सचेंज है, वो इन 26 को रिकमेंड करती है कि ये हो सकती है। तो अब सारी की सारी 26 को यहाँ पे करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया कि आपको आइडिया हो जाए कि दुनिया में किस किस तरह के कॉम्बिनेशन है और किस ऑब्जेक्टिव के साथ है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने इसमें में प्लेस कर दी है, इसमें प्लेस है प्रेजेंटेशन के अंदर। आपने प्रेजेंटेशन वाली जो है ना वो सारी की सारी प्रिपेयर करनी है, ठीक है जी। सर एक बार प्रोजेक्ट रिपीट कर दीजिए। वो जो आपके पास एफआरएम के अंदर मौजूद हैं स्ट्रेटजीज, उस पावर पॉइंट की जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी क्लास में, सिर्फ वो वाली स्ट्रेटजीज जो है उनकी आपने उनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके उसे आपने सबमिट करना है। एक मैंने ऑप्शन स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर तो एक क्वेश्चन है अभी आपका इस स्टेज के ऊपर। वो क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्ट फाइनेंस जो है इसके रिस्क और रिटर्न्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए क्या है, ये मैं ईमेल भी कर देता हूँ, उसमें असाइनमेंट में प्लेस करूंगा ना तो सबको वो मिल जाएगा। सर मिड्स होंगे? अभी रात में कर देता हूँ। नहीं, मिड्स जो है ये प्रोजेक्ट और असाइनमेंट इसी के अंदर होंगे, ओके। डायरेक्टली ऑनलाइन एग्जाम में नहीं जाएंगे। सर प्रोजेक्ट फाइनल एग्जामिनेशन ऑन कैंपस करेंगे जी। बस ये जो आपको पीरियडिकली हैंड ओवर कर रहे हैं ना, इसी को सबमिट करते जाएं, इसी में से जो है देख लेंगे कि कैसे करना है। सर अब तक जी बताइए, और कोई क्वेश्चन? सर कवर प्रोजेक्ट फाइनेंस की अगर वन बाय वन आ जाए। प्रोजेक्ट फाइनेंस का मेरे ख्याल क्वेश्चन लेते हैं पहले, बताइए। सर प्रोजेक्ट फाइनेंस की अब तक कितनी असाइनमेंट्स हो गई हैं?